Good evening, everyone. Thanks everyone for being with us today. I am Good evening, Tahsin sir. Ahmed and yeah, I am Tahsin Ahmed and today's webinar is hosted by TechBank. Let us begin with the proceedings of this webinar. A brief introduction to TechBank. So TechBank in EdTech industry is the fastest growing platform in the country. Its offices are in Bhubaneswar, Delhi and Patna. It is recognized by the Government of India and supported by Startup India. TechBan offers a new opportunity to enthusiastic students to learn new techniques and make them industry ready. I am happy to welcome our guest speaker, Mr. Saurabh Khandelwal. He is the president of SCOM India and CEO and founder of Track Sales for You and PCare. This webinar is on how to start a startup and it will be fun and full of learning. Now I will request Mr. Saurabh Khandelwal to take over and proceed with the webinar. Thank you so much for the introduction. And first of all, good evening, everyone. So the most interesting part is, I can say probably this crowd is out of those 100% of crowd, and you guys are definitely you have something different in mind, and that's the reason you are here, right in the evening time, in the late evening time. You are just investing your precious time with us, and of course, so this session is going to be very interactive. So I'm not gonna present a PPT and to deliver a speech like how to start a startup. So these are very basic things. We all know this, right? So let's just talk about me, that what kind of mistake I made in my initial days, and what I learned, and just kind of very practical experience sharing. So I'm gonna tell you everything, like what I can say probably what I did was wrong and what I did was right. Okay. So of course, if you have any questions, so we can start by taking 1 2 questions, right? If you want to know how to start a startup, if you want to know how I started my startup, if you want to know how to find a problem statement, how to create a solution statement, so we can go with it, right? So I'm good at any language. Like I can probably Hindi is well. So Hindi, English, anything. Of course, I don't know Tamil, Telugu. So I'm not, पूरा मुझे decode करना पड़ेगा. So अगर किसी के पास भी कोई question है, so we are really good to start, and we'll start by taking questions. So of course, 20% like let's say अगर 1 लाख लोग हैं और 1 लाख में से ये 20 लोग जो खास हैं, जो ऑलरेडी वेबिनार पे हैं, तो अब इन 20 में से भी कोई 1 2% में आना चाहेगा. सो किसी के पास कोई क्वेश्चंस है स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड? और लेट मी जस्ट आस्क रैंडमली, why you join today's session? So what's your motto to be here? To be a leader. To be a leader? Okay, perfect. Yeah. सर Any चलो other कुछ तो answers? Yes, कुछ तो Rakesh. सीखने को मिलेगा सर, कुछ तो सीखने को मिलेगा Lovely. कॉलेज के बाहर का. Right. Of course. Yeah. So to know more about the startup and the entrepreneurship journey from you, what you did in your life, so it will be really honored to listen from you. Okay, so I'm not in the end of life. So anyway, I'll share whatever I did till journey of 25 years. Okay. Yep. Very good point, Ayush. Any more? So I can read out all of your name: Hina, Sudipta, Megha, and yes, Priyans. How to start from scratch in entrepreneurship and what are the basic steps to start it? Okay, very good point. Of course. मुझे ये किसी ने नहीं बताया था, तो मैंने काफी गलतियां की, बट आज मैं आप लोगों को बता दूंगा. तो आप लोग वो रिपीट मत करना. Yes. Thank you very much. Any more questions? Or shall we start with this, guys? उससे start कीजिए. Okay. So basically, first of all, thanks for asking, and you guys are literally leader. So that's the reason you take lead today as well. So of course, like पहले ये समझते हैं कि एक स्टार्टअप होता क्या है, एक स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है, रियल डेफिनेशन क्या है. वरना यू कैन हंट इन गूगल और आप लोगों को बहुत से डेफिनेशंस मिल जाएंगे कि एक स्टार्टअप क्या है. बट अगर मैं ग्राउंड
एक definition बताऊं कि what is a startup, right? So in simple words, startup is something, you know, you create a business model to solve a problem statement by providing a revenue model. So मतलब आपको मदद करनी है लोगों की, लेकिन मदद करके पैसा कमाना है. That is a startup. और अब ये मदद आपको इनोवेटिव तरीके से करनी है, राइट? ऐसे नहीं सिंपल तरीके से करनी है. लेट्स से कि आप डेली कॉलेज जाते हो और यू लिव अराउंड 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कॉलेज. तो आप डेली 20 किलोमीटर्स अकेले बाइक में कॉलेज जाते हो, लेट्स से कार में कॉलेज जाते हो, और अब आप कॉलेज जा रहे हो तो लोग ऐसे आपसे लिफ्ट मांगते हैं तो आप जनरली लिफ्ट दे देते हो. सो दैट्स नॉट अ स्टार्टअप कि आप डेली लोगों को लिफ्ट दे रहे हो, मदद कर रहे हो. लेकिन व्हाट यू आर डूइंग हियर कि आपने एक एप्लीकेशन बनाया, यू क्रिएटेड एन एप्लीकेशन, और अगर आप डेली कॉलेज जा रहे हो, आप जैसे और भी लोग हैं जो सेल्फ ड्राइविंग पे जा रहे हैं अकेले, और फिर आपने क्या किया कि नहीं, यू वांट टू टेक अ राइड विद मी अप टू कॉलेज, सो यू नीड टू पे लेट्स से 20% ऑफ द मार्केट और 30% ऑफ द मार्केट. अगर वहां से वहां तक जाने का 20 किलोमीटर लेट्स से अगर 200 रुपए बनता है तो आप उसको 50 रुपीज में छोड़ रहे हो. दैट्स अ स्टार्टअप. आप यहाँ पे सोशल कॉस्ट पे भी काम कर रहे हो, आप खुद के लिए भी कर रहे हो, और आप पैसे भी कमा रहे हो. सो दैट इज स्टार्टअप. ओके, एक पान की दुकान खोलना इज दैट स्टार्टअप, बट अगेन अगर आप चेन ऑफ पान की दुकान खोल रहे हो तो दैट्स स्टार्टअप. ठीक है, यू गॉट इट? सो ऑफ कोर्स that's the again I believe I cover all of your answers. And yeah, how I started my journey. So in 2018 when I was in my second year of college, so that time I started my first company, name is Trexels for You Private Limited. And initial days was, you know, I had a dream that I'm gonna be an entrepreneur, a owner for a company which will generate revenue of crores. And as a boss, you know, I'll employ more than 5,000 employees, and I'll just, you know, I'll create a different image of myself in market. So that kind of thought we all have when we actually start entrepreneurship journey in very initial days. So and we always think like कि हमारे जो senior होते हैं they have less work than us. तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ऐसा था कि अगर मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा तो लोग काम करेंगे, मैं मजे करूंगा. That kind of perspective we do have basically in those college days and all. So इसीलिए startups looks very you know, funky word, and these days it's a buzzword for everyone. Everybody wants to start a startup, while knowing the reality कि 90% startups actually fail in initial days, right? यस सर. सर जैसे हम मूवीज में देखते हैं बिजनेस टाइकून्स कुछ अलग एंगल से शो करते हैं उन्हें. अगर आप मूवीज या सीरियल्स में देखेंगे, हम उधर देखते हैं बिजनेस टाइकून्स को सारा दिन ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं. उनको कोई हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क कुछ नहीं है. ये उनका इससे गलत इमेज क्रिएट होता है स्टूडेंट. Right. अगर वो नहीं बेचेंगे, वो एग्जैजरेट नहीं करेंगे तो बिकेगा कैसे? Right. So good point again. आप लोगों ने देखा है, सी वो लाइफ भी रियल है, ऐसा नहीं है कि वो एक लेविश लाइफ जी रहे हैं. इट्स नॉट पॉसिबल. इट इज पॉसिबल, बट एवर यू नोटिस कि ऐसा नहीं होता कि वो सडनली लेविश लाइफ जी रहे होते हैं, मतलब अचानक से उनके पास सब कुछ होता है. हाँ, वो अचानक से जो मतलब जो सब कुछ होता है वो वाला पार्ट मूवी में जरूर थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन उससे पहले एक स्ट्रगल का फेज होता है, राइट? यस. सो वो स्ट्रगल बहुत छोटा जरूर होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सी चीजें समझने वाली होती है. जैसे वो हमेशा जब हीरो छोटा होता है, जब हीरो स्कूल्स में होता है, तब हीरो की स्ट्रगल चालू होती है, और जब तक हीरो कॉलेज पहुंचता है और ग्रेजुएट होता है तब तक हीरो सेटल हो चुका होता है, राइट? जी हाँ, जी हाँ. राइट. लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. रियल लाइफ में जब तक हम छोटे होते हैं तब तक हमें तो लाइफ के बारे में पता ही नहीं होता, हम मजे में होते हैं. और जब हम कॉलेज में होते हैं तब भी आज की जनरेशन तो तब भी नहीं समझ पाती कि तब आगे क्या करना है. हाफ ऑफ लोगों को पता ही नहीं होता कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद क्या डिसीजन लेना है. और फिर जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाते हैं तब हमारी स्ट्रगल चालू होती है. सो ऑफ कोर्स जो रील में है वो रियल लाइफ से ही है. दैट इज नॉट समथिंग बियॉन्ड. होता है, मेहनत करने वालों को सब मिलता है. नथिंग इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, राइट? यस. यस. सो Yes. of course, see, I took presentation or sessions for many organizations, for few of the universities as well. And the best part, what I feel about my session is motivation. Second thing, I don't have a presentation because मैं बहुत lazy हूँ, तो मैं बना नहीं सकता presentation, इसलिए I always choose this
to make interactive session. And what I believe is, of course, मैंने भी काफी सेशंस लिए, बहुत से पीपीटीज देखा, बहुत से लोगों को सुना, बट उनको सीरियस लिया ही नहीं. बट कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने बात की और उन लोगों को सीरियस ले लिया, तो उन लोगों से लिटरली बहुत सीखने मिला. तो आई एम हियर जस्ट फॉर कॉज ऑफ शेयरिंग और क्लियरिंग योर डाउट्स. वी लिटरली लाइक वी वांट टू क्रिएट मोर एंड मोर स्टार्टअप्स जहां से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए दुनिया की. तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट? जी हाँ जी. So golden opportunities, definitely. If I do one-to-one mentoring to anybody, I do charge, let's say around 3,000 per hour, 5,000 per hour. So that's the beautiful thing about TechBrain, that we are here talking free of cost. So of course, if you have any questions, any queries, again, I'm literally waiting for queries to make this session interactive. Hina, yes, we do have a question in chat box. Hina, good evening, sir. It's good to know that how people do mistakes in beginning and how should we avoid that. Okay, so problems and mistakes are different for everyone. सबकी बुक सेम नहीं होती, सबका सिलेबस सेम नहीं होता, और लाइफ में सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं होती, राइट? Do we have a reaction button in this? No, we don't have. Oh, that is in Zoom. Of course, fine. So प्रॉब्लम से कैसे डील करना है और एग्जाम्स कैसे देने, सबके लिए अलग अलग होता है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं. सो आई एम नॉट गोना टेल यू कि मतलब आपको अपने प्रॉब्लम से कैसे डील करना चाहिए, आप कैसे प्रॉब्लम फेस करेंगे. बट यस, थोड़े बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स जो होते हैं, विल डिस्कस अबाउट दैट. इनिशियल डेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अपने आइडिया को आप समझते हो कि दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ये आइडिया ऐसा है, ये सोल्यूशन ऐसा है जो किसी के पास नहीं है, और ये ऐसा है जो सोच भी नहीं सकता कोई. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनिशियल डेज में, जब आप अपने आइडिया को छुपाने लगते हो. लगता है मैं इसको बता दूंगा, मैं आज अभी ये सेशन में सौरभ को बता दूंगा, सौरभ इज गोना कॉपी माय आइडिया, राइट? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, दैट फियर विद आइडिया. सो डोंट हैव दैट, मतलब वो फियर आपको अपने पास रखना ही है. कोई आपके आइडिया को कभी कॉपी नहीं कर सकता, नो वन, क्योंकि लोगों के पास आइडिया है. द मेजर पार्ट इज एग्जीक्यूशन, और जिसका इनिशियल आइडिया होता है, ही नोज हाउ टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया, राइट? तो वो फियर आप लोग कभी मत रखो कि मैं अपना आइडिया किसी से शेयर नहीं करने वाला, लोग कॉपी कर लेंगे, कोई आपके आइडिया को कॉपी नहीं कर सकता. और अगर कोई कॉपी कर भी रहा है तो वो उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जैसे आप कर सकते हो. दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टीम बिल्डिंग, बेसिकली को टीम बिल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं को फाउंडिंग टीम. तो इनिशियल डेज में हमें हर दूसरा अपना अच्छा फ्रेंड अपना टीम का पार्टनर और डायरेक्टर लगता है. तो ये भी एक बहुत आई कैन से प्रोबेबली मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज रही है कि आपको इनिशियल डेज में अपनी एक अच्छी टीम चूज करना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है या वो आपका बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, ही इज गुड इन टॉकिंग विद पीपल, सो यू आर गोना execute a startup with him, and you will become the boss. You will keep 80% of equity and आप उसको 20% दे रहे हो, आप और किसी को 10% दे रहे हो. So that is again a very big mistake everybody do in initial days while choosing their core team member or founding members. Third point is of course I can say कि बहुत से लोगों को nowadays culture कि मेरे पास ये idea है, I know how to do it, I'll do it, I'll make 1,000 crore company, but I need money to start with this idea, right? That's the again a very misconcepts I can say probably everybody have nowadays कि मेरे पास बहुत फैंटास्टिक आइडिया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बस मुझे इन्वेस्टर चाहिए, और बस एक पिच डेक बना के घूमते रहते हैं और लोगों से Alert from Google Chrome. Worst passive aggressive notes. Sorry, yeah. So that is the second mistake we do. अगर आप अपने आइडिया के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए you need money, then your idea is not good at all. Like if you are not able to generate money, of course not good at all, right? So that's the second thing. Third thing, you should be careful in very initial days कि ऐसे ही मत रहो कि मतलब कोई पैसा देगा तो I'll make money out of it or I'll execute the idea. Initial days start with very small. Probably fifth point is हम लोग कई बार सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लेट्स से कि अब जैसे हमने इनिशियल में बात किया कार का एग्जांपल, सो अब हम क्या सोचते हैं
कि हम पहले लिफ्ट भी दे देंगे, लिफ्ट से कुछ विल क्रिएट द रेवेन्यू, फिर मैं कॉलेज में जाके कार पार्क करता हूँ, तो मेरी कार खड़ी रहती है, मीनवाइल मैं 6 घंटे क्लास करता हूँ, तो 6 घंटे के लिए मैं क्लास भी, मैं उस कार को भी रेंट आउट कर दूंगा। फिर हम ये सोचते हैं कि अच्छा मैं जब रेंट आउट करूंगा तो मैं एक ड्राइवर को भी रख लूंगा, वो ओला उबर में भी चला लेगा। सो यू नो इनिशियल डेज में particular one problem with one solution, that should be our focus area, not to try to solve everything। मतलब हमें सब कुछ सॉल्व करने का नहीं सोचना चाहिए, दैट इज अगेन अ मेजर मिस्टेक वी ऑल डू इन वेरी इनिशियल डेज। हमें लगता है कि हम पूरा इकोसिस्टम ही बना देंगे, सब कुछ हम ही सॉल्व कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप हमेशा किसी एक सिंगल आइडिया और किसी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन के साथ स्टिक रहो, स्टार्ट विथ समथिंग सिंगल एंड देन आप उसको ऐड करते जाओ, क्योंकि होता है ना लाइक अनटिल अनलेस जब तक आप स्विमिंग पूल में नहीं जाते हो तो आप स्विम करना कभी नहीं सीख सकते। तो यही चीज है, बाहर से बहुत अच्छा लगता है कि यार स्विम इट, लाइक बहुत मस्त पानी है, मैं तैर लूंगा ये, लेकिन जब तक आप अंदर नहीं जाते हो ना तो गहराई का और कैसे तैरना है उसका अंदाजा बिल्कुल नहीं होता है। तो फर्स्ट एग्जीक्यूट विथ सिंगल प्रॉब्लम, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें भी बहुत सी चीजें हैं और इसमें भी बहुत सा वर्कआउट किया जा सकता है। सो ये सारी कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो इनिशियल डेज में प्रोबेबली एग्जीक्यूशन से पहले ही हमारे माइंड पे होती हैं। एंड वी डू हैव सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम राकेश कुमार, जॉब एंड अ स्टार्टअप रेदर देन लाइफस्टाइल चेंज। ओके सी, सो ये एक दूसरा सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से लोग स्टार्टअप करते हैं। दे ऑलवेज वांट टू बिकम अ बॉस, and of course I was also wanting to become a boss in very initial days। so जब आप किसी कंपनी के सीईओ को देखते हो या फिर लोग जितनी हायर लेवल पे रहते हैं, प्रोबेबली नाउ आई कैन से कि उनके पास उतना ज्यादा प्रेशर होता है। और यू नो लोग एक्सपीरियंस क्यों जज करते हैं जब आप किसी जॉब के लिए जाते हो, जबकि आपके पास स्किल होती है। मतलब जो 5 साल से काम कर रहा है, जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोबेबली कुछ लोग इतने स्किल्ड होते हैं कि वो 5 साल एक्सपीरियंस वाला जो गाय मतलब जो है आदमी, वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, यू कैन डू इट वेरी फास्ट इन वेरी इफेक्टिव वे। ऐसा भी होता है, लेकिन कंपनीज हायर नहीं करते, राइट? वो हमेशा आपका सीनियर होता है जिस जो आपके जितना इफेक्टिव और स्किल्ड अप नहीं होता। व्हाई? यू नो बिकॉज लिटरली एक्सपीरियंस मैटर अ लॉट। This is not about solving a problem with skill in an effective way. This is all about how you do it, how you handle the stress, right? Because there are a lot of stress, there are a lot of timelines, deadlines you need to maintain. So that's the reason every industry look for the experience. And let's come up to Rakesh's questions. So see, in let's say in startup or in job wherever you are, so doing a job is again not a bad thing. In fact, I work for US Embassy, right? So I'm also full time with them, and apart I'm like working on my own startup. And so job and lifestyles, startups and lifestyles are a bit different. So in job, of course, if you want to grow faster and अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो वहां जॉब में भी आपको डेडिकेटली काम करना पड़ता है, आप बिना घड़ी देके काम करते हो, राइट? और स्टार्टअप्स तो है ही ऐसा, लाइक डे वन यू एंटर, यू मेक अ कंपनी, सो you need to forget about everything from your life, everything, right? So lifestyle is all like how you work. That's the reason every time everyone asks कि आपके 5 years down क्या plans है, because वो 5 years वाला vision होता है। आप जॉब में हो, स्टार्टअप्स में हो, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, और अगर आप 5 years बाद अपने आप को उस जगह पे देखना चाहते हो, तो वो 5 years you need to work like anything, you need to forget about everything, right? So do we have any other questions or Yes, what? sir, a question. Yes, sir, a question. Okay. सर वैसे सपोज मेरे पास एक आइडिया है, सपोज तो मेरा नेक्स्ट, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास प्रॉपर स्किल नहीं है, तो Right. नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो मैं फोकस किस पे करूं, स्किल पे, या फिर आई शुड शेयर माय आइडियाज टू डिफरेंट पीपल हु कैन गिव प्रॉपर स्किल टू मी, और आई शुड स्पेंड मोर टाइम इन लर्निंग स्किल्स? Let's just make this very practical kind of example. तो आप कोई random idea बताओ जो कभी भी आपके माइंड में आया हो, anything. कुछ भी, लेकिन लाइक बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कुछ। हाँ, yes. अच्छा, सपोज मैंने एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोला और मुझे एडिटिंग टूल्स बिल्कुल नहीं आते,
ठीक बट है। मुझे कंटेंट बनाना आता है, बट मुझे एडिटिंग स्किल्स नहीं आता है, तब तो मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करेगा। और एक आजकल यूट्यूबर्स भी एक टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप ही कह सकते हैं हम, वही राइट, आप मान लीजिए एक एग्जांपल। ठीक है। सो लेट्स मर्ज आयुष एंड सुयश स्टार्टअप्स, लाइक मतलब आइडिया, राइट? अभी से आयुष का यही क्वेश्चन है जनरली कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वी नो कि लेट्स से कि यूट्यूब में मुझे मुझे कंटेंट पता है, मुझे पता है कि कैसे वीडियो से लोग इन्फ्लुएंस होंगे, लेकिन मुझे एडिटिंग करना नहीं आता, वीडियो मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, लेट्स मतलब रिकॉर्डिंग्स करना नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कंटेंट क्या होना चाहिए। इज इट राइट आयुष? मतलब अब इस आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, राइट? यही यस पूछना सर, चाह रहे हो? यस सर। परफेक्ट। सो स्टार्टअप्स की नो द ब्यूटीफुल पार्ट इज दिस, एक बिजनेसमैन जो होता है वो हमेशा वो कर पाता है जो वो खुद कर सकता है। मतलब इज अ सिंगल मैन कंपनी, वो ही डू द थिंग्स व्हाट ही कैन डू बाय हिमसेल्फ। एक दुकानदार होता है, एक पान की दुकान है, वो अगर खुद पान बना पा रहा है तो वो बेच रहा है। एक ट्रेडर है जिसकी बहुत बड़ी बिजनेस है, लेकिन वो गल्ले पे खुद बैठ रहा है, राइट? लेकिन यहाँ स्टार्टअप्स की सबसे अच्छी बात यही होती है, लेट्स से कि आपके पास कंटेंट है, आपको वीडियो बनाना है, और यू नो हाउ यू गोना, लाइक लोग इसको देखेंगे, दिस वीडियोस आर वेरी इन्फ्लुएंसिंग। सो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑलवेज नीड टू कम आउट विद अ वैल्यू प्रपोजिशन। अब आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे या फिर आपने किसी की यूट्यूब वीडियो देखी होगी और आप उससे इन्फ्लुएंस होके आपने ऐसा सोचा होगा कि मैं इससे ज्यादा अच्छे कंटेंट्स बना सकता हूँ। सो माय फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज अप्रोच योर कॉम्पिटिटर टू स्टार्ट विद। मतलब जिसकी वीडियो देख के आप लिटरली इन्फ्लुएंस हुए हो, उनके साथ काम करके देखो, मेरा ये सजेशन है पर्सनली। मतलब उनको बोलो कि मेरे पास एक कंटेंट है, क्या आप इस पे वीडियो बनाओगे, क्या आप इस पे वीडियो बना के डालोगे, और आई हेल्प यू आउट, मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा, यू नो हाउ टू एडिट, यू नो हाउ टू मेक वीडियोस। अगेन अभी आप लोग ये पूछोगे कि बट रीचिंग आउट टू दोज पीपल आर हार्ड, मतलब आप उनसे बात कैसे करोगे? सो यस सर, वो तो एक ऊपर के पोजीशन में होंगे ना, हम तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके कैसे कांटेक्ट में आएंगे? राइट, सो यहाँ आता है मार्केट वैलिडेशन। सी, अगर आपके आइडिया में लिटरली दम, मतलब वो है, परफेक्शन है कि अगर आप उस आइडिया को एग्जीक्यूट करो तो ये सक्सेस हो जाएगा, तो आपको लगता है कि जो यूट्यूबर है जो अच्छा कर रहा है, जिसके वीडियो देख के आप इन्फ्लुएंस हुए हो, वो कभी उस चीज को अप्लाई नहीं करेगा, उसको अप्लाई करेगा, राइट? और देयर यू कैन वैलिडेट योर आइडिया कि जो आप सोच रहे थे वो लिटरली वैलिडेट है या नहीं, वो लिटरली एग्जीक्यूट होगा या नहीं हो सकता, वो कंटेंट अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। सो दैट्स द थिंग इनिशियली, instead of starting your own with this kind of basically YouTube and all, और अगर कुछ आपके पास आइडिया है, लेट्स से आपके पास कोई एक आइडिया है, आइडिया XYZ, और आप उसका एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो इनिशियल स्टेज आपका ये रहना चाहिए, पहले उस आइडिया को डायरेक्टली वेबसाइट बना के कंपनी रजिस्टर करके एग्जीक्यूट करना। ये सारी चीजें इनिशियली बहुत लोग गलती करते हैं, तो डायरेक्टली ये ना करें बिल्कुल भी। पहले इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट एंड ऑल, क्रिएट अ फेसबुक ग्रुप, create a page in Instagram, create a group in WhatsApp, and start giving those services by these three medium, right? तो आप मार्केट वैलिडेट कर सकते हो, लोग लिटरली आपकी सर्विसेज ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, जो XYZ कंपनी के बारे में आपने सोचा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। वंस यू स्टार्ट कि लोग आ रहे हैं, उस बारे में बात कर रहे हैं, और आफ्टर रनिंग ऑफ 3 months 4 months आपको लग रहा है कि कुछ ट्रैक्शन हो रहा है, people are really interested about that idea, then you can start full time into the idea। फिर उसके बाद फुल टाइम भी मतलब आप फिर सोच सकते हो किसी वेबसाइट के बारे में, आप फिर सोच सकते हो कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के बारे में, और जब आप 3-4 months डेडिकेटली किसी भी चीज को देते हो तो आप उस चीज को और अच्छे से समझने लगते हो। इनिशियल डेज में जो चीजें आपको बहुत ईजी लगती है, लगता है कि बस ऐसा ही करना है, कंटेंट ही बना के दे देना है, और कोई वीडियो बना देगा और यूट्यूब पे आ जाएगा, एंड थोड़ा सा डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कर देंगे, एंड दिस चैनल इज गोना बस्ट लाइक एनीथिंग। सो वैसा होता नहीं है रियलिटी में, राइट? सर, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास उसका MVP तो होना चाहिए। मतलब हम कुछ भी सर्विस देने के लिए हमारे पास कुछ व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम वेबल प्रोडक्ट, जिसमें से उसका पूरा होना चाहिए, कि हम उसको सर्विस दे रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसे मतलब स्किल्स होना चाहिए जिससे हम सामने वाले को दिखा सके। लेकिन हम इतने अभी क्या उसके ऊपर इतना आइडिया नहीं है, मतलब वो स्किल हमारे पास नहीं है ना, तो उसी के लिए हम चाहते हैं कि दूसरों के साथ डिस्कस करें।
तो उस केस में क्या करना चाहिए हमारे पास? हम टाइम किधर स्पेंड करें, अपने प्रोडक्ट के ऊपर या फिर खुद के ऊपर वो स्किल सीखने के लिए, या दूसरों के पास हेल्प ले सके? परफेक्ट। सो मैंने जैसे इनिशियली भी बहुत स्टार्टिंग में कवर किया, क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम अकेले सब कुछ कर लेंगे, तो वो सबसे गलत चीज है। हियर यू नो कि आपको ये स्किल नहीं आती, आप ये आइडिया एग्जीक्यूट करने वाले हो, लेट्स से आपको कोडिंग करना नहीं आता, लेकिन टेक इज द मेन पार्ट टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया, राइट? या में एप्लीकेशन चाहिए, लेकिन आपको एप्लीकेशन बनाना आता ही नहीं है। और आता नहीं। अभी आप एप्लीकेशन किसी और से बनाओगे तो आपको ये फियर रहता है, पहला कि वो आइडिया चोरी कर लेगा, आइडिया सर। दूसरा कि मेरे कैश बंद हो जाएगा अगर आइडिया नहीं चला तो, राइट? यस जो सर, क्योंकि हम एप्लीकेशन कैसे लगे वो गए, है ना? हाँ राइट। सो ऐसे मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए ना, हमें हमेशा पहले मार्केट सर्वे करना चाहिए, डायरेक्टली आइडिया के और एप्लीकेशन के साथ एग्जीक्यूशन में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हमें वैलिडेट करना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं, डायरेक्टली एमवीपी नहीं बनाते हैं, मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बना के डायरेक्ट सर्विस नहीं देते हैं। पहले उस चीज के बारे में बात करो लोगों से, लोगों को बोलो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसी बोतल बनाने वाला हूँ जिसमें पानी ठंडा रहेगा 24 घंटे तक। तो क्या लोग पसंद करेंगे 24 घंटे तक उस एक बार बोतल को फिल करके पीने के लिए? कुछ लोग होते हैं ना, लाइक इन एवरी 2 आवर्स दे चेंज देयर वाटर, मतलब लोग को अच्छा नहीं लगता ज्यादा देर तक बोतल में पानी रखना। और फिर कई बार तो ऐसा होता है कि हम रात में पानी भरते हैं, सुबह उठते हैं और फिर उसको फेंक के फ्रेश वाटर वी फिल्ड इट आउट एंड देन वी ड्रिंक, राइट? तो आप जो सोच रहे हो ये सोल्यूशन है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनिशियल एमबीपी में डायरेक्ट मत जाओ, पहले आप मार्केट वैलिडेट करो, लोगों से बात करो उस बारे में, एंड देयर इज नथिंग टू बी फियर अबाउट कि कोई आपका आइडिया चुरा लेगा। कोई आपका आइडिया नहीं चुरा सकता, व्हाट्स योर इज योर्स। मतलब बेसिकली टॉकिंग टू द पीपल अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग टू डू बिफोर डूइंग एनी प्रोडक्ट। Yes, the point is it's not about solution, it's about how you are gonna provide that solution, and that's the main part. आप ये बताओ कि solution क्या है, प्रॉब्लम क्या है, आप ये मत बताओ उनको कि आप कैसे एग्जीक्यूट करने का सोच रहे हो। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं गर्मी के दिनों में मैं कॉलेज जाता हूँ, कहीं दूर जाता हूँ और पानी ज्यादा देर तक ठंडा नहीं रहता, लेकिन मुझे ठंडी पानी पीने की आदत है ना? तो आप लोगों को ये मत बताओ कि आप ये बोतल कैसे बनाने वाले हो, आप लोगों को ये बताओ कि हम एक बोतल बनाने वाले हैं जिसमें 12 घंटे तक पानी। आपको क्या लगता है कि लोग प्रीफर करेंगे, लेकिन ये थोड़ा महंगा होगा, तो आपको लगता है लोग इसको खरीदेंगे? या फिर हमें इसमें और क्या करना चाहिए, हमें इसमें हॉट वाटर का भी सोल्यूशन डालना चाहिए क्या? बोतल के 2 ओपनिंग्स होने चाहिए क्या, एक जगह से ठंडा निकले एक जगह से गर्म निकले, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो इनिशियली यू नीड टू डिस्कस अबाउट योर आइडिया विद पीपल, विद मेंटर, आपको जिनसे लगता है, नो, start talking with the people who are related to this industries. उन लोगों को फॉलो करो जो ऐसा कर रहे हैं, जो बोतल बना रहे हैं, तो यू विल हैव एन आइडिया कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसी नई चीज आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि जो आप सोच रहे हो ऐसा करना है और कोई बड़ी कंपनी सेम टाइम में उसी आइडिया के साथ आ गई। ये सब मतलब वो ऑलरेडी उस मार्केट पे है, तो हम अगर सेम रिपीट करेंगे तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि इट्स ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश्ड कंपनी। इट्स नॉट लाइक दैट अगेन। सी, अगर ओला है तो उबर भी है, जोमेटो और स्विगी है, तो उन जैसे पता नहीं कितनी कंपनीज हैं और हर दिन कोई फूड एप्लीकेशन आ रहा है। और इट्स नॉट अगेन कि कोई नहीं चल रहा है, सबके सब चल रहे हैं, सबके सब रेवेन्यू कर रहे हैं। वी यू नो इंडिया में स्टेट नहीं होता है, इंडिया में हर बॉर्डर के साथ एक नई कंट्री स्टार्ट हो जाती है, एक नया कल्चर स्टार्ट हो जाता है, एक नए टाइप का माइंडसेट स्टार्ट हो जाता है। सो आप जहाँ पे हो, यू नो देयर कल्चर, यू नो कि लोगों का माइंडसेट कैसा है। अभी वहां पे आके जो आप जो आइडिया सोच रहे हो कि नहीं, मैं सोच रहा हूँ सपोज लेट से मैं भी एक फूड डिलीवरी ऐप सोच रहा हूँ, लेकिन स्विगी जोमेटो ऑलरेडी है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ अलग सोचना पड़ेगा, आपका कुछ यूएसपी होना चाहिए उसमें कि यूनिक सेलिंग पॉइंट। और लेट्स से समटाइम्स आप भी सेम आइडिया सोच रहे हो, लेकिन आप इस समय ये सोच रहे हो कि मैं राइडर को थोड़ा ज्यादा कमीशन दूंगा या फिर मैं रेस्टोरेंट्स को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। तो सेम मॉडल में भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि जो चीज बन गया है वो आप दोबारा नहीं बना सकते। इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। जो चीज बन गया है मार्केट में, अब आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट? या Any other questions we do have to, sir, how to create our business plan and what basics? So basics, Surya's right. See, yes sir, yes, we sir. already we already had discussion, हमने इन सब चीजों पे डिटेल में बात कर लिया, but initially what I'll tell you guys is कि आपके पास जो भी हमेशा आइडिया है, मेक अ नोट, आप पेपर पेन पे लिखो कि लेट्स से
सबसे सिंपल, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट व्हाट आई एम गोना सॉल्व, this is the solution statement, how the solution what I'm going to provide, and this is the execution method. So I'm going to solve this problem in this way. Let's say मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है लेटली, या मुझे एक वेबसाइट बनाना है, या मुझे ऐसे ऐसे लोग चाहिए होंगे, तो लिखो, चीजों को लिखो, उनको सिर्फ माइंड पे मत रखो और लोगों के साथ रैंडमली डिस्कशन मत करो. make notes out of whatever you have. So when you will make notes, so जब आप लिखने लगते हो तो ऑब्वियसली एक डिटेल आइडिया आपको भी आ जाता है. कई बार आपको लगता है कि मैं जो सोल्यूशन सोच रहा हूँ गलत है, या फिर ये अवेलेबल है लेकिन लोग इसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, तो आपका भी उसी चीज सेम चीज को करना. इट्स नॉट गोना क्रिएट एनीथिंग एल्स फॉर यू, राइट? And we have a question from Tushar Goyal. Sir, can you please elaborate the point about selection a good team in the initial stage? Okay. So there is no kind of, I can say, fixed point to choose team. Of course, एक चीज जो सबसे बड़ी कॉमन होनी चाहिए, डेडिकेशन एंड विजन. मतलब जैसा आप फील करते हो अपने आइडिया को लेके, जैसा आपको लगता है कि आप 1000 करोड़ की कंपनी बना दोगे, तो जो 3 लोग 4 लोग 5 लोग या एक भी जन है आपके साथ, तो सेम विजन होना चाहिए, सेम डेडिकेशन होना चाहिए. इनिशियल डेज में स्टार्टअप्स की टीम में यही प्रॉब्लम आती है कि सब लोगों का डेडिकेशन और विजन सेम नहीं होता. सब लोग एक अलग पिक्चर देख रहे होते हैं, सब एक अलग फेम में होते हैं, और सबके माइंड में एक अलग चल रहा होता है. और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि शायद अगर 5 लोगों की टीम है तो 2 लोग स्टिक हो जाते हैं आइडिया के साथ और 3 लोग लेफ्ट आउट, कोई अच्छी जॉब मिली नहीं और अब हो गया. देयर इज ऑलवेज 2 ways टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. फर्स्ट वन इज, आपके पास कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप कॉलेज में हो, व्हाट आई सजेस्ट इज कम ऑन फील्ड, ट्राई करके देखो, डोंट इन्वेस्ट टू मच, डोंट डायरेक्टली गो टू वेबसाइट. बट अगर आप एक कोडर हो तो मेक अ वेबसाइट, नो इश्यूज, राइट? if that's your skill. And if that's not your skill, so you can take help of your friends and all, जो आपके साथ लिटरली आना चाहते हैं, and they'll take it as a project and all, वो अपने प्रोजेक्ट में इसको दिखा सकते हैं. तो इनिशियल डेज मतलब कॉलेज में सबसे पहले आप एग्जीक्यूट करके देखो, एंड डोंट पुट योर हार्ड एंड फास्ट. सक्सेस हो गया सो दैट्स फाइन. अगर आप कॉलेज से ग्रेजुएट होने तक आपने उसमें कुछ कर लिया, आइडिया में आपने कुछ ट्रैक्शन कर लिया, सो यू कैन परस्यू इट, यू कैन गो फॉरवर्ड विद दैट. और अगर सेकेंड वे इज कि अब आपके पास कोई आइडिया है, कोई सोल्यूशन है, यू वांट टू मेक इट नो मैटर व्हाट. नो मैटर आपको गूगल पे जॉब मिल रही है, नो मैटर आपके लिए इजी नहीं हो रही है चीजें, आप वेबसाइट नहीं बना पा रहे हो, आपका कोई फ्रेंड वेबसाइट नहीं बना के दे रहा है, लेकिन यू वांट टू डू इट, यू विल डू इट. सो देयर आर ऑलवेज 2 ways टू डू अ स्टार्टअप. One is hit and try method, and one is to achieve method, right? And most of the time success ratios come with the plan 2, but it's always better when you are in college days to start with plan 1. So at least you will have an idea, क्योंकि पहला ही जो आइडिया है या पहला बिजनेस मॉडल है वही परफेक्ट है, ऐसा भी नहीं होता. So any other questions? सर जब इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा टीम बिल्डिंग होता है, फिर कोई अगर टीम का लेफ्ट कर जाए, फिर हमें तब क्या करना चाहिए? देखो, ये सब बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस हैं. तो अब लेट्स से कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरा जो रूममेट था हॉस्टल में, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छा है किसी एक पर्टिकुलर स्किल में, और हम दोनों साथ में मचा डालेंगे, हम दोनों साथ में कुछ भी कर देंगे, तो हम दोनों साथ में आ गए. लेकिन फिर उसको कुछ फॉरेन अपॉर्चुनिटीज मिली एंड ही लेफ्ट. उसने बोला कि सौरभ मुझसे और नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई हैव सम फैमिली इश्यूज, आई नीड टू विन ब्रेड एंड बटर फॉर माय फैमिली. सो दैट्स फाइन, यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. एंड उस समय आप यही कर सकते हो कि आपको या तो कोई और खोजना पड़ेगा, और या तो आप आइडिया को लेके बहुत सीरियस हो तो आपको खुद को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. सो इसीलिए आप हमेशा जब चूज करो टीम मेंबर, तो हमेशा सब लोगों का विजन सेम होना चाहिए, डेडिकेशन सेम होना चाहिए. रेंडमली लोगों को लेके कि तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये करते हैं अपन, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, तू बस ये कर देना, तू बस प्रेजेंटेशन में आके खड़े हो जाना, है ना. सो ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए जो जनरली लोग करते हैं. मतलब लोग कई बार कि मैं सब कुछ कर दूंगा, तू बस साथ में आ जाना, पेपर में फोटो आएगा. सो ये सब करके कोई फायदा नहीं है. इफ यू आर फाइंडिंग समवन जो सेम एफर्ट डाल रहा है, जो सेम डेडिकेटेड है, so let's go. Okay. Yeah.
Any other questions? So, of course, as I informed earlier that I'm not gonna present any PPT and talk random things. So we'll talk very practical things. जो भी आप लोगों के mind में, you can ask me. सर क्वेश्चन Yes. सर सपोज एक मतलब एक बहुत अच्छा मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एक अच्छी कंपनी में उसको जॉब मिल रहा है लेकिन वो क्यों चाहेगा कि हमारे कंपनी में हमारे स्टार्टअप पे ज्वाइन करे हाउ टू मतलब वो क्यों आना चाहेगा कि वो हमारे यहाँ पे जॉब करे लगभग वो 20 to 25 लाख पर annum मुझे दूसरी कंपनी में मिल रही है तो हाउ टू हायर इन दैट केस मतलब आप लोगों को अपने टीम में कैसे लाएं आप जानते हैं वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर है आपको चाहिए क्या वो आपका फ्रेंड है? नहीं सपोज नहीं। नॉट नहीं नहीं है, ज्यादा right? सर ये लोग So the thing is कि आज भी लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि ओयो भी हायरिंग्स करता है ना, बायजूस भी हायरिंग्स करता है और फ्लिपकार्ट तो चलो फ्लिपकार्ट इज अदर थिंग। आज भी जो स्टार्टअप्स 1000 करोड़ रेवेन्यू पे हैं, जो यूनिकॉर्न है, जब वो भी हायरिंग करती हैं और एक ऑफर किसी एमएनसी से होता है ना, तो people don't go to startup, they go to MNC companies, right? यस सर दे आर मतलब वो ज्यादा लाख पर annum पे चले जाते हैं Yes. मतलब उनका सैलरी पे The thing is we can't change people mindset. अगर कोई 25 लाख की जॉब करना चाहता है और आप उसको चाहते हो कि वो आपका टीम मेंबर बन जाए, ये अच्छा। तभी हो सकता है जब आपने अकेले कुछ किया हो। आपने अकेले कंपनी में 5-10 लाख का रेवेन्यू किया हो और आप उसको बोल रहे हो कि भाई तू वहां जा रहा है तो तेरी 25 लाख की सैलरी होगी, और अगर उसके पास स्किल है, उसके पास वो माइंडसेट है एंटरप्रेन्योर स्किल वाला कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ अलग करना है, क्योंकि 25-30 लाख एनुअली बनाना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील nowadays if you have a skill, right? But getting a recognition it's a big deal nowadays. मतलब आप लिटरली रिकॉग्नाइज हो, लोग आपको जानते हैं, है ना? तो अगर वो उसके वो माइंडसेट है, उसको वो चाहिए, उसके लिए पैसे से ज्यादा प्रायोरिटी रिकॉग्नाइजेशन है फॉर इनिशियल डेज, वो खुद का कुछ करना चाहता है और आपने अकेले कुछ किया है, आपने 5-10 लाख कुछ भी कमाया है, कुछ ट्रैक्शन किया है, तो आप उसको इक्विटी ऑफर करोगे, ही विल कम ऑन बोर्ड विद यू एंड दैट्स अगेन ऑन यू हाउ यू आर मोटिवेटिंग हिम टू कम ऑन बोर्ड, हिम और हर। वरना तो लोग एमएनसी को छोड़ के ओयो को ज्वाइन नहीं करते। रितेश अग्रवाल इज अगेन यू नो वो मोटिवेट नहीं कर पा रहे, राइट? या सो मतलब इनिशियल डेज में स्टार्टअप पे कैसे हायर होता है उनका तो इतना बिजनेस मॉडल इतना हाई नहीं होता है वो कैसे हायर करते हैं जब भी लोगों को समस्याएं बहुत है और इनिशियल डेज में ऐसा नहीं है कि हायर ही करके करते हैं, इट्स ऑलवेज अबाउट टीम। 2-3 लोगों से आइडिया स्टार्ट होता है और फिर 2-3 लोगों को ऐसा लगता है कि अब इस आइडिया में थोड़ा और पैसा लगाना चाहिए, फिर वो थोड़ा पैसा भी कमाते हैं, थोड़ा पैसा लगाते भी हैं और दैट्स हाउ दे हायर पीपल। बहुत लोग मिल जाते हैं, राइट? इट्स नॉट ऑलवेज कि आप एक 25-30 लाख जिसकी सैलरी है उसको अप्रोच कर रहे हो कि भाई मेरे पास आ जाओ 10,000 में काम करेंगे और मैं 10% इक्विटी भी दे रहा हूँ, तो ऐसा तो कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। अगेन लोग आएंगे जब आपका आइडिया उतना वर्दिट हो, तो जब आपने उस आइडिया के साथ कुछ किया हो और आप सिर्फ आइडिया को लेके बैठे हो एक प्रेजेंटेशन बना के और उसको बोल रहे हो कि तू आ जा, तू एक कोडर है, तू बस वेबसाइट बना दे बाकी मैं देख लूंगा, तो कभी कोई नहीं आएगा। सब पहले एक ब्रांड वैल्यू होना चाहिए तभी वो आएगा। ब्रांड वैल्यू डे 1 पे नहीं बनता, तो ब्रांड वैल्यू इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि ब्रांड वैल्यू होना चाहिए, लेकिन कुछ ट्रैक्शन होना चाहिए, कुछ आपने किया हो आइडिया के साथ, कुछ आपने एमबीपी जिसकी हम बात कर रहे थे एटलीस्ट वो बनाया हो, ट्राई किया हो, फेल हुए हो, सर्वे किया हो, आपने कुछ किया हो, कुछ ट्रैक्शन हुआ हो, तो लोग आते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, राइट? यस यस। सो सर अगर सब लोग लीडर ही बनना चाहेंगे तो एम्प्लॉय कौन बनेगा? मतलब एम्प्लॉय भी एक तरह से लीडर होता है अगर लीडर की नजर से देखें तो, लेकिन फिर भी यू नो कंपनी के लिए द ग्रेट पार्ट इज सब लोग लीडर बनना ही नहीं चाहते। दैट्स ट्रू। आपको क्या लगता है इस सेशन के लिए इन्होंने कितनी मार्केटिंग की होगी, कितने लोगों को भेजा होगा? मेल किया होगा सर, मेल किया होगा। तहीन आप लोगों ने कितने लोगों को भेजा था ये इनविटेशन? Alert from the iCloud storage is almost full. You are on mute. Sorry. Actually, we have sent the
mail for approx 12,000 to 15,000. See that kind of. And we have also promoted on the our social media handles. So Rakesh, do you need any more explanation on this question? No, thank you. Right. So किसी को leader बनना ही नहीं है, नहीं चाहते लोग. There are only 2% people who think beyond, and we now we have 18 people who are into the 2% of club. Any further question or anything? I haven't got this kind of opportunity when I started, or else मैं तो अपनी सारी प्रॉब्लम ही बिजनेस मॉडल ही बिल्कुल क्लियर कर लेता जो भी मेंटर या फिर मॉडरेटर होते हैं उनके साथ. सर अगर स्टार्टअप के स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मान लेते कोई लीगल इशू हो जाए, तो उससे कैसे डील करेंगे? नहीं होती है लीगल इश्यूज. देयर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट लॉज. इनफैक्ट पता है आपको, अगर आप एक स्टार्टअप हो तो और आप रेवेन्यू भी कर रहे हो, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, तो आपको जीएसटी की भी जरूरत है. लाइक जब तक आपकी रेवेन्यू 30 लाख नहीं हो जाती है. ओके लीगल इश्यूज. सर मान लो आपने स्टार्ट किया, आप अपने केस में मेंटर्स कैसे ढूंढे? वैसे हम भी अभी स्टार्ट किया, आप अपने केस में मेंटर कैसे ढूंढे, उसके साथ आइडियाज कैसे डिस्कस करें? आपने क्या किया था अपने टाइम पे? मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक डाल दिया है जहां आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, और लाइक आई मे बी कनेक्ट यू विद फ्यू ऑफ द मेंटर्स. और इसके अलावा मेंटर कैसे ढूंढे, तो कोई भी चीज इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम कि आपके दिमाग में ऐसे नहीं कि आप रात को सोए हो, सुबह वो चीज सडनली आ गई हो. हमेशा क्या होता है, हम किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उस चीज को करना चाहते हैं लाइफ में. राइट. मतलब कहीं से देखिए, फिर उसके बारे में सोचे, फिर कुछ. तो आपने जहां से देखा उस चीज को, या फिर जिसकी वजह से देखा उस चीज को, ही इज द पर्सन. अगर आप उससे डायरेक्ट लेट से कि आपने आप बिल गेट्स से इंस्पायर हो गए, लेकिन आप बिल गेट्स तक तो रीच नहीं कर सकते. राइट. लेकिन बिल गेट्स अकेले नहीं है जो उस पर्टिकुलर आइडिया पे काम कर रहा है. देयर आर थाउजेंड ऑफ पीपल. लेकिन आप उन थाउजेंड ऑफ किसी को तो अप्रोच कर सकते हो. राइट. और उनमें से कोई एक अप्रोचेबल हो सकता है. यस सर. या एनी मोर क्वेश्चंस? सर इनिशियल डेज में जब हम स्टार्ट करते हैं, हम काफी लोग बहुत फेयर, मतलब उनका एक बहुत सारा इनसिक्योरिटीज होता है, एटलीस्ट मनी को लेकर, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में ये सबसे बड़ा इशू है. इसको कैसे हम टैकल करें? इसीलिए मैंने पॉइंट बताया आपको कि देयर आर ऑलवेज टू वेज टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. वन इज हिट एंड ट्रायल, सेकंड इज करना ही है कॉन्क्रीट डिसीजन. तो ऑलवेज स्टार्ट विथ हिट एंड ट्रायल. ठीक है. एंड मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, आई डोंट हैड मनी, मेरे पास तो पैसा नहीं था, एंड आई मेक अ कंपनी इन वैल्यूएशन ऑफ 50 करोड़. आई राइज्ड 5 करोड़ इन 2 years ऑफ जर्नी फ्रॉम यूएस. I literally started, तब मेरे पास I don't come with a family background which have 1,000 crore of property. So again, I'm from very normal middle class company, but I built that company like family, sorry, yeah. But I built a company which had valuation of 50 crores. So it's not a big deal. It's about how dedicated, how passionate you are about your idea and about your future. सर मतलब परसिस्टेंसी रखना पड़ेगा. Sorry? परसिस्टेंसी रखना पड़ेगा. कई लोग को गिव अप कर देते हैं. Right. And again, it's good to give up sometime. मतलब कभी-कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि आगे जाने के लिए थोड़ा पीछे आना पड़ता है. लेट्स से कि आपने कॉलेज में कुछ स्टार्ट किया, आप फेल हो गए, दैट्स फाइन. उसके बाद आपने जॉब किया, ठीक है. लेकिन आपने इनिशियली अगर कुछ स्टार्ट किया है और आप जॉब कर रहे हो, तो आप जिस वे में जॉब करते हो, आपका जो माइंडसेट और परफॉर्मेंस रहता है, आई कैन बेट यू कि वहां जो 100 लोग काम कर रहे हैं उनका नहीं होगा, क्योंकि यू डिड योरसेल्फ. आपने कभी कुछ किया है जीवन में, आपने अपने से कुछ इनिशिएट किया था, फेल हो गए हो तो आपने बहुत कुछ सीखा है उस जर्नी में. और एक टाइम ऐसा आएगा ना, फिर यू विल स्टार्ट परस्यूइंग योर आइडिया अगेन, एंड दैट टाइम यू विल हिट एंड सक्सेस. Right? Okay, sir. Right. Yes. Yeah. Sir, how we can find a good startup to work? So it's always good to start your career with startup. I can say probably अगर कुछ ऐसा नहीं है कि there are no jobs. As a startup, I run 3 companies and we face a lot of difficulties to hire people.
because we are offering them less, but the work culture and the environment and the responsibilities what a startup offer to someone, not a MNCs or big companies do offer, right? So जॉब काफी है, यू कैन फॉलो इन लिंक्डइन। फर्स्ट हमेशा यू नीड टू फाइल कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी स्किल क्या है। लेट्स से आई एम गुड इन कोडिंग बट आई एम गुड इन मार्केटिंग, बट मुझे सिर्फ फोन बेचना पसंद है। और ऐसा नहीं कि मैं मार्केटिंग में अच्छा हूं तो मैं किसी भी कंपनी में चला गया और मैंने मार्केटिंग टीम ज्वाइन कर ली, राइट? तो अगर मुझे फोन बेचना पसंद है तो मेरा इनिशियल टारगेट ये होना चाहिए कि मैं उन्हीं कंपनीज के साथ काम करूं जो फोन बेचती है। जी सर मतलब हाउ टू फाइंड अ बेटर को-फाउंडर, सर आपको पता कैसे चले कि वो आपके साथ रहेगा? मतलब क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक बेटर को-फाउंडर के लिए There अकॉर्डिंग is टू यू? no such criteria, मुझे भी नहीं पता चला आज तक। दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का विजन और डेडिकेशन। और आप किसी के साथ इनिशियल डेज में काम करते हो ना, तो जब आप ऐसा नहीं कि आपने किसी को बोला, आपने उसके साथ 2-5 दिन काम किया और फिर आपने साथ में कंपनी बना ली, यू डिवाइडेड 50-50% ऑफ इक्विटी और फिर बस अब मचा देंगे, ये थिंकिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमेशा किसी के साथ भी किसी को एज अ को-फाउंडर लाने से पहले वर्क विद देम फॉर एटलीस्ट 3 months, फॉर अ क्वार्टर। आपको एक दूसरे को समझना, आइडिया को समझना, दोनों का डेडिकेशन समझना, इट्स ऑलवेज टेक टाइम। तो सडनली किसी को इन करना इट्स नॉट अ गुड डिसीजन एनीवे। पहले लोगों के साथ काम करो, एक दूसरे को समझो। जैसे let me take a very informal example basically. So when we make a girlfriend, ऐसा नहीं होता पहले नजर में प्यार हो गया और वो प्यार फिर 1-2 महीने में खत्म हो जाता है ना, या फिर वन साइडेड लव हो जाता है। तो ऐसे स्टार्टअप्स में नहीं करना चाहिए। पहले लड़की को बेस्ट फ्रेंड बनाओ, फिर उसको घुमाओ और फिर प्रपोज करो। पहले ये जान लो कि भाई वो भी प्यार करती है या नहीं। सो दैट्स द थिंग टू फाइंड अ को-फाउंडर। मतलब पूरा उसके साथ वर्क करके आपका विजन मैच होना चाहिए, बहुत काम साथ में काम करना चाहिए, फिर उसके बाद आप एक डिसीजन ले सकते हैं। राइट दैट्स द परफेक्ट वे टू फाइंड अ को-फाउंडर बेसिकली। तो वो आपको कैसे पता चला कि ये मेरा परफेक्ट को-फाउंडर है? यहाँ पे इतने बड़े क्राउड में आप कैसे चूज करोगे उसको? आप चूज नहीं करोगे, आप कभी चूज नहीं करोगे, लोग चूज करेंगे कि आपको उनके साथ काम करना है या नहीं। क्योंकि इनिशियल डेज में तो आप चाहोगे कि हर कोई मेरी टीम पे आ जाए। आप तो ये बोलोगे तैन भी आ जाए, सौरभ भाई भी आ जाए और हम सब मिलके कर लेंगे, ये आइडिया सबसे अच्छा है, वर्ल्ड का सबसे फैंटास्टिक आइडिया यही है, एलन मस्क नेक्स्ट इसी पे काम करने वाला है। तो कभी आप चूज नहीं करने वाले, लोग आपको चूज करने वाले हैं, राइट? Yes, sir. Resonance frequency. Yes. Importance of team in entrepreneurship. Okay. Yeah, please. तो हाउ टू रीच आउट टू पीपल कि आप चाहते हैं कि आपको पता है कि ये एक अच्छा मार्केटिंग है और आप एक कोडिंग, आप साथ में मिलके काम करना चाहिए, लेकिन वो आपको जानता नहीं है। तो जब आपको पता है तो आप उससे बात कर लो। लेकिन सर तो हम उसे इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे? तो मेरे साथ काम कर, तो ताकि हम सर आपको इन्फ्लुएंस करके काम करवाना पड़ रहा है, मतलब वो आपका फाउंडर बन ही नहीं सकता। अगर वो आपके आइडिया को नहीं समझ पा रहा है या फिर आप उसको समझा ही नहीं पा रहे हो, अगर आप नहीं समझा पा रहे हो तो आप आइडिया को अच्छे से नहीं समझे हो, अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हो लोगों को तो ठीक है। और अगर वो नहीं समझ पा रहा है मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो उस क्राइटेरिया में नहीं आता कि आप उसको टीम में भी लो, तो बहुत जल्दी वो टूट जाएगा। वो मतलब वो ज्यादा वर्क भी नहीं करेगा अगर फोर्सफुली आ रहा है तो। यस देखो हमेशा क्लियर रहो। व्हेनेवर वी गो फॉर इंटरव्यू वी आर क्वाइट नर्वस कि वो मुझसे क्या पूछेंगे, इंटरव्यू में क्या होगा। सो इट्स नॉट यू नीड अ जॉब, ऑफ कोर्स यू नीड अ जॉब, बट दे नीड अ एम्प्लॉय टू, राइट? तो हमारे अंदर वो फियर नर्वसनेस होता है कि नो अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो भाई अगर तुम वहां रिजेक्ट हो गए तो देयर आर 1000 ऑफ कंपनी, कोई और हायर कर लेगा, है ना? जितनी जरूरत आपको जॉब की है उससे ज्यादा जरूरत उनको एम्प्लॉय की है, कोई चाहिए ना उनको काम करने के लिए। यस सो दैट इज, एंड लाइफ में बहुत स्ट्रेट रहना बहुत सिंपल होता है। सर मेरा वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, प्लीज टेल अबाउट इट। सो लेट्स से अगेन इसके लिए बहुत इनफॉर्मल एग्जांपल लेंगे बिकॉज द क्राउड इज वेरी यंग एंड आई एम टू। सो जब आप
किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, राइट? तो आपके लिए टाइम का इंपॉर्टेंस कैसा होता है? आप बिल्कुल एकदम अगर उस लड़की ने आपको कुछ बोला, सो भैया आप कुछ भी कर रहे हो, रात को 1 बज रहे हो, आपको भूख लगी हो, आप खाना छोड़ के भी उस लड़की के लिए पहले जाओगे, उसका काम पहले करोगे, राइट? होता है ये सर। रात So को you 1 बजे got से it. लेकर You got it कि कितना Yes, इंपॉर्टेंट है टाइम? हाँ सर। Perfect. So I'm good to answering this question anyway. Yeah. Any other questions? सर आप भी तो किट के हैं ना? No. I'm not from KIT. I'm from IHM. मैंने अच्छा। like मेरी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है. After getting a hotel management degree, and now I become someone who is quite good in marketing, basically business development. So there is no link up. सर तो जब कोई इन्वेस्टर अप्रोच करता है वो क्या ये देखता है कि वो जो स्टार्टअप कर रहा है उसका कॉलेज बैकग्राउंड कैसा हो, अच्छा कॉलेज से है या नहीं? See, वो सेकेंडरी चीज होती है. ऑफ कोर्स ये देखा जाता है, ठीक है? आप कोई इंटरव्यू में ही बैठते हो, आप बहुत स्किल्ड भी हो, लेकिन उससे पहले वो पूछते हैं ना आप किस कॉलेज से हो. जी हाँ जी। जस्ट बिकॉज टू नो योर कल्चर, राइट? कई बार फैमिलीज पे भी क्वेश्चंस आती है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है इंटरव्यूज में, लेकिन वो सेकेंडरी है. फर्स्ट ये है कि आप आइडिया को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो. शार्क टैंक हम सबने देखा होगा. हाँ सो आई एम नॉट गोना Yes, स्पीक sir. publicly कि शार्क टैंक की बुराई नहीं करने वाला, बट आई वाज द वन हु वाज नॉट wasting my time to on this that particular show. But yes, उसमें एक कोई लड़का था जो बहुत हिट हो गया था. He was creating some agriculture equipment. जुगारू कमलेश। जुगाड़ू, राइट? सो वो किसी कॉलेज से ग्रेजुएट था? जी नहीं। उसके पास कोई डिग्री थी? जी नहीं। लेकिन उसको फंडिंग मिला ना, उसको सपोर्ट हाँ, मिला, राइट? हाँ एंड लेट्स से और काफी कंपनीज आई थी जहां पे आईएम से लोग थे, हाँ लेकिन Okay. फंड नहीं मिला ना. You got your answer? Yes sir. Lovely. Yes. So you guys can connect with me in LinkedIn. I already forwarded a link. Apart, I am sending my LinkedIn link with all of you in chat box right here. So anytime, anything, if I can help you out, guys, so I'm always ready. Of course, I do it in a pro bono method, so it's not like कि आपको मेरे से बात करने के लिए मुझे पे करना पड़ेगा. I'm always there. I'm quite passionate about entrepreneurship and all. And so then we are good to end the session. Yeah, but I was saying that if there are means अगर इन लोगों से कोई क्वेश्चन मिस हो गई जो आपको लगता है that you Yes. can अगर कोई share question with है, us. we can continue till 12th or maybe whole midnight. I have no issues. And अगर नहीं है, so we'll need to end up the session. Because And any suggestions from your side, Saurabh? Suggestion about The entrepreneurship and startup that the students may missed that points to ask so you. I always conclude my session by saying one line which I thought and I wrote is 99% of startups fail. That's a fact, right? 99% startups or companies Yeah. fail, but 100% of entrepreneurs do success in their life. So that's the beauty part of entrepreneurship. Don't afraid to start something and don't think so much कि क्या होगा, फेल हो गए तो. आपने सबसे अलग किया, ये 10th क्लास की एग्जाम नहीं थी कि 10 लोगों मतलब 1000 लोगों ने दिया और आप फेल हो गए तो इम्पैक्ट आ रहा है कि फेल हो गए तो क्या होगा. ये ऐसा है कि ये तो 10 लोग भी नहीं करते उन 1000 लोगों में से. तो अगर आप उन 2 या 5 या 10 लोगों में से हो तो फेल भी हो गए तो क्या फर्क पड़ता है. एटलीस्ट आपने वो उस पे काम किया जो आप करना चाहते थे. एंड the most important thing, I don't know what's your background and all crowd ka, but nowadays big companies, Google's, Amazon and all the MNC's companies are looking for candidates. Those are जिन्होंने entrepreneurship और ये सब कभी pursue किया हो. So it's always make a valid point in your life, in your CV. आप practically बहुत सी चीजें सीख जाते हो लाइफ के लिए. भैया एक Yes. लास्ट क्वेश्चन. सपोज Yes. मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था और मैंने उसके लिए इन्वेस्टर से पैसे लिए थे. बाय चांस वो मतलब आइडिया फ्लॉप हो गया और मेरा वो बंद हो गया, बट अब मुझे उसके पैसे चुकाने हैं, तब वो कोई एक भी issue कभी होता है. आपके आइडिया पे पैसे लगाएगा ही नहीं. मतलब सर नहीं, सपोज वो बन चुका नहीं. कुछ.
नहीं, कभी कोई आइडिया पे पैसे लगाएगा नहीं, और अगर आपने कुछ रेवेन्यू किया है, आपने कुछ ट्रैक्शन कंपनीज में की है, तो कभी कंपनी फेल होगी नहीं। ये हो सकता है कि आप लॉस में चल जाओ, कैश बर्निंग मॉडल में चल जाओ, तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू गेट आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फेज, राइट? बट कभी कोई फेल नहीं होता। कोई कंपनीज जो बंद होती हैं, उनके पीछे काफी सारे रीजंस होते हैं, और कई बार तो बहुत सीली रीजन होते हैं, जैसे को फाउंडर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, जैसे वो कैश हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो इन्वेस्टर बैकआउट कर देते हैं। तो जब इन्वेस्टर्स को, अगर मैंने आपकी कंपनी में 100 रुपए भी लगाया है, तो डेफिनेटली मैं उस 100 रुपए को लेके बहुत क्यूरियस होऊंगा। जिस दिन मुझे लगा कि 100 रुपए की वैल्यूएशन 110 से 102 रुपए पे आ गई है, जैसे ही 102 पे आएगी मैं पुल आउट हो जाऊंगा, फिर आप भले बंद कर दोगे, राइट? अच्छा भैया, अगर हम अपना स्टार्टअप का वो आईपीओ दे सकते हैं क्या? वो देना कुछ स्टार्टअप करते वो सही है? आईपीओ लगाना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे कहते हैं। IPO is the best thing। सब सारी IPOs are always good for, वैसे तो इंडिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता, रूल्स हैं तो फॉलो करने वाले लोग भी नहीं है, राइट? लेकिन it's always great valuation for your company, for your idea if you have IPO। ओके, थैंक यू। But again, very careful while you file IPOs, क्योंकि अभी क्या होता है, मैंने लोगों को देखा है, there is ecosystem in India where people want to put their name in IPOs and IPs, right? मतलब आइडिया आपका बना आप रहे हो, लेकिन आपने किसी एक पे ट्रस्ट किया और फिर नाम वो आपका डाल देते हैं, और यू विल बिकम अ सेकेंडरी पब्लिशर फॉर दैट। सो ऑलवेज बी क्यूरियस एंड to know these things more। I'm not an IPO guy, so I can't suggest you proper way, बट आप करते हो किसी भी चीज को तो स्टडी करो, रिसर्च करो, फिर करो। श्योर। So do we have, yes, Anisa, one last question: how to bring our idea to market effectively, analysis whether it will hit or not? It's all like start executing the idea, by talk with people, talk with mentors, and try to find out कि आप जो सोच रहे हो, is it worthy, this is something people are gonna use it। ये पहले वैलिडेट करना बहुत जरूरी होता है। Anis, did you got your answer? Yes, Priya, great। Anything else? Any other questions? So I probably take those। सर तो भैया अगर कभी कुछ जरूरत पड़े तो आपको उधर से कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के थ्रू। Of course, I am always there। Time is concerned, but I'll definitely answer you guys, and I'm always there to help you out। ओके, right? जितना मेरे से हो सकता है। I never make fake promises। तो अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं करूंगा, और मेरे रिव्यूज बहुत स्ट्रेट होते हैं, so sometimes people don't even like it। So I am very straight guy। If I found that कि आइडिया में दम नहीं है तो मैं आपको मुंह पे बोल दूंगा। So don't get motivated from that। ऐसा नहीं कि I'm the right one to judge any of the ideas। कई बार मुझे भी बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती, राइट? ओके, थैंक यू भाई। Yes। थैंक यू। Anything else? And thank you guys to be here। Of course, you are already in those 2% of club, and you can connect with me in LinkedIn and in other social medias as well। Of course, I already shared my link। Let me do that again। So Tain, do we have Tessin, right? Yeah. Okay, yeah. So do we have any other questions or something from your side as well? No, Yeah, not so from my basically there's a saying, Tazeen, just a minute. So Yeah, yeah. basically there's a saying which says that raising venture capital is the easiest thing a startup founder is ever going to do. But it isn't. We all know that. Pitching is a very difficult job, right? Right. So can you suggest some of the ideas how, if we have any idea in our mind, how can we pitch it in front of an investor so that the investor is ready to invest in our business, whatever business idea we have? How So are if we you going to need- pitch? How? Yes, sir. Right. So if you need my opinion about pitching and investing, so when I initially started my journey, I was one of those guys who prepared a PPT and attending many webinars, seminars instead of focusing in my business
and developing a good business strategies, focusing on operation. I was the one who was roaming here and there and pitching many investors and all, right? But lately I realized that the time and the energy what I invested in pitching and all, I must be focused in operations, business strategies, and in my companies. So I'm not in favor of investment because I raised. So I know obviously it's tough to raise investment, but it's hardest once you raised it, once you have investor on board with you, right? So I never suggest any of these startups or entrepreneurs to properly to be focused in initial very like for up to like say like for 5 years to go and pitch and raise fund for the startups. But some of the tips for pitching and all, so what I'll suggest is always make your PPT very short. Just talk about point to point, because it's not always you who is looking to raise the investment, it's always investor as well who want to make his money double, triple or 5x, right? So आप उनसे ले रहे हो ऐसा नहीं है, आपको उनको देना भी है और उनको भी पैसे ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे वो पैसे को 3x 4x 5x तक ले जाएं. सो आप पॉइंट टू पॉइंट पिच को रखो हमेशा. डोंट टॉक अबाउट कि हम इतनी सारी चीजें ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. Always talk about problem, solution, how big the market is, how you are providing the solution, what are your SOPs in very short form. ठीक है, बहुत ज्यादा elaborate नहीं करना है. Always make elevator pitch kind of. आप इतने आइडिया को लेके इतने परफेक्ट हो जाओ कि आपसे कोई सडनली भी आके पूछे तो आप किसी को भी अपने आइडिया के बारे में जस्ट 2 मिनट्स में समझा सको. और अगर आप इतने कैपेबल हो, अगर आप ये कर पा रहे हो, देन यू नीड इन्वेस्टमेंट एंड देन यू आर इन्वेस्टमेंट वर्दी. सर हमें बेसिकली कौन से स्टेज पे हमें ये पता चल रहा है कि हमें अभी इन्वेस्टमेंट चाहिए, या फिर कुछ स्टेज पे हमें वो पॉइंट आउट करना चाहिए कि हमें अभी इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर हम उससे खुद आगे ले सकते? आपको इस पॉइंट पे ये करना चाहिए जब आप एक रेवेन्यू बना रहे हो, आपकी कंपनी अच्छी चल रही है, नो मैटर इट इज इन ब्रेक इवन और इट इज इन प्रॉफिट, राइट. लेकिन अब आपको लग रहा है कि अब मुझे ग्रो करना है. लेट्स से कि मैंने एक कोचिंग सेंटर खोला है और मेरी कोचिंग सेंटर अराउंड ओडिशा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे कोचिंग सेंटर दूसरी सिटीज में बनानी है, लेकिन उसके लिए मुझे फंड चाहिए होगा. फंड क्यों चाहिए होगा? कि मैं चाहता हूं कि मैं खुद की बिल्डिंग लूं, खुद रेंट आउट करूं, खुद टीचर्स को सैलरी दूं और बनाऊं. मैं फ्रेंचाइजी मॉडल पे जाना ही नहीं चाहता और उसी हिसाब से मैं अपने बिजनेस को चला रहा हूं. तो दैट्स द पॉइंट. यू एक्चुअली नीड अ इन्वेस्टर ऑन बोर्ड विथ यू कि अब जो आए और वो आपको पैसा दे ताकि आप अपना बिजनेस बढ़ा सको. कभी भी बिजनेस करने के लिए पैसा मिलता भी नहीं है और कभी भी लुकअप नहीं करना चाहिए. हमेशा बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा लुकअप करना चाहिए और उनको ही मिलता है जो ऐसा करते हैं, जिनके प्लान्स ऐसे ही होते हैं. ओके सर, बूटस्ट्रैप के बारे में आपको क्या सजेशन? अगर हमें कंपनी बूटस्ट्रैप करे या फिर फंडिंग पे, व्हिच इज बेटर ऑप्शन? Of course, but see, this is myth. This is totally myth that in initial days you will have a good idea, you will have a good solution. एक 2-4 IIMs की टीम लेके जा रहे हो, so you'll get investment. कोई भी अपना पैसा किसी और के ड्रीम पे क्यों लगाएगा? Bootstrap is of course a good thing. Initially आपको bootstrap ही करना पड़ता है, right? Yeah. Yes. Okay. Any other questions? So. No, sir. Yes, sir. I got one of the question in the forms written by students. They wanted to ask actually that how can I patent my startup idea if on its early stage? When it is in its early stage, how can I patent that idea? So, of course, I'm not the right guy to answer this question, but idea patent and all, there are few steps and there are few companies who do so. So you need to talk with them and according to me as a marketing guy, I am never in favor of that as well. क्योंकि इंडिया में ऐसा पेटेंट जैसा कुछ होता नहीं है और आप कुछ भी पेटेंट कर लो, that is gonna copy out, right? और patenting is a big process and cash burning model. So, but that again add value in your startup, of course. So I'm not the right guy to answer step wise what you need to do and all, but you can hunt some of the
companies or maybe some of the mentors who are into it. Sure. Any other questions? I hope the question will be answered. If anyone has any other question, you can go ahead and ask, No, or no. else we'll be All are cleared. sorry. All questions are cleared. Okay, so can All I good. ask few Okay. questions now? Sure, sure. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so just let me know like how was the session and what make you very clear after this session. तो प्रैक्टिकली क्या क्या होता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, और हमने पहली बार मैंने कोई वेबिनार अटेंड किया है आपका। इसके पहले तो लाइफ में किसी एंटरप्रेन्योर से डायरेक्ट बात नहीं की, यही सबसे एक पहला एक्सपीरियंस हुआ है। ग्रेट। और सर दूसरा वेरिएंट मिथ्स हमारे क्लियर हुए कि हमें पहले स्टार्ट करने के लिए ये चीज चाहिए, या फिर ये हम जो पहले से प्री एजम्पशन लेके बैठे थे कि ये होगा, वो भी क्लियर हुआ कि वी जस्ट नीड टू स्टार्ट टू गेट एनी पोजीशन। Lovely. So I got to know the process- missing steps that I was missing. Okay. the process of proper execution. Lovely. So I always take this review. So next time whenever I attend different crowds, so I want my time again valuable, and for time those attendees who are actually in the session, their time also like valuable for them also. So I always try to take review. So yeah, that's the reason I always ask. Any other let's say questions or something you want to discuss, something you want to know, or something you want to tell? Anyone from audience? हाँ सर, कभी कभी ये होता है, कभी कभी फैमिली का प्रेशर भी रहता है, हम लोग वो स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें जॉब के थ्रू जाना चाहिए, ये कई सारे बच्चे फेस करते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करें? There are all probably ऐसा होना चाहिए जब अब आपको अगेन आंसर इट इन इनफॉर्मल वे। अगर आपको कोई लड़की पसंद है, अगर आपको उसी को गर्लफ्रेंड बनानी है, उसी से शादी करनी है, तो दिन दुनिया और समाज सबसे लड़ना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि फैमिली के लिए यू नीड टू सेक्रीफाइस फॉर फ्यू ऑफ द इयर्स। आप कुछ चीजें कुछ टाइम के लिए भूल जाना चाहिए, एंड लेट्स जस्ट फोकस व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो जरूरी है उस बारे में सोचना चाहिए। अगर फैमिली में आपका जॉब करना जरूरी है तो लेट्स फाइन, एक बार आप जॉब कर लो 1-2 साल, तो आपको थोड़ी और ज्यादा नॉलेज भी हो जाएगी, और आप साइड पे 1-2 साल बाद काम कर लेना। ऑफकोर्स मतलब शायद ऐसा हो कि 2 साल में चीजें बदल गई हो, तो आप भी बदल गए होंगे, राइट, तो आपके आइडियाज भी बदल गए होंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन, तो जैसे कि आपने बताया कि आप अपने कॉलेज टाइम में स्टार्ट किया अपना ये, तो आपने कैसे मैनेज किया आपका वो बिजनेस एज वेल एज योर कॉलेज स्टडी? हाउ यू मैनेज द टाइम इन बोथ द फैक्टर्स? So I was working like anything. I don't had a social life in college days. In my batch there were 63 students, but today as well I don't have a good bonding with all of them. While they were roaming here and there, they were going for outings and all. I was working in office, and that's the reason today there is a gap between them and me, right? So you need to prioritize things. You need to sacrifice things. Yeah. And in fact no one is so much busy, so we get sufficient time. College mein classes 8 hours ke hote hain, and let's say you do your self study for 2-3 hours, again you have 12 hours to work in your idea. Yes sir. Yeah. Sir, Any- how to manage relationships as well as startup at the same time, like girlfriend wali baat? So I don't have one, so I can't suggest you that. I don't have a practical experience into that. अब जो मुझे पता ही नहीं है Okay. मैं बता भी नहीं सकता, right? I can't suggest you anything. But people do have it's up to you. It's all understanding what I believe is. Maybe I can answer that. Yeah, then please. The person who grows with you and supports you is the one. Simple.
So we are good to end the session out here. Yes, sir. Yes, sir. Lovely. Yes, Tehsin. So, Yeah, okay. okay, Yeah, thank you so yeah. much. Thank you everyone. so much for joining this webinar, and we will be having more such events in the future. And thank you so much, Mr. Saurav, that you have been a very pleasant guest, and we look forward to having you with us again. Thank you. Bye, everyone. So you can connect me in Bye, sir. LinkedIn. And I already shared few of my. Thank you. Excuse me, sir. Just before ending the session, I have some announcements to make. So if you can just bear with us for the next 5 minutes, if that's fine. Okay, fine. Yeah, so basically, guys, those who have joined here, we have some announcements to make. So before leaving the session, you can hear these announcements if possible. So let me go ahead. So every long journey starts with but a small step. So basically, we here at TechBrand, like if you do want to stand out from the crowd in your college, or if you are an entrepreneur soul, so then don't give a second thought and become a campus associate at TechBrand. Represent us at your college. So basically, we want campus associates from your side who are willing to represent themselves, represent our company in their college, and buckle up your shoes to uplift your leadership and communication skills. You just need to join hands with TechBrand, enroll with us, and get certificates, letter of recommendations, as well as hands-on experience on the industry, how the industry works. You'll be getting everything that you want. We'll be helping you from our side how much ever is possible. So it's basically, we want you guys to gain some experience. As Sir told before throughout his webinar, you need to gain some experience before getting into the industry. We'll be providing you that experience. So in case you want to go forward with the Campus Associate program, I'll be sending the link in the chat box. In case you want to go forward with it, you can register with us on the given link. And also an attendance sheet would be forwarded to you before leaving the session, just given your attendance to get the certificates of the webinar. And also a WhatsApp link, a WhatsApp group link would be shared to you if you want to know about the Campus Associate program, like who is going to conduct who would be managing, how are you gonna take care of the Campus Associate program, how are you gonna deal with the students and all. We'll be dealing with those information in that group. So in case you want to join with us, you can join that group link. I'll be sending it to you, the link. Just give me a second. And also, sir, yeah. So, yeah, I would like to go forward with the vote of thanks to our distinguished guest and my dear participants on behalf of TechBrand, its entire fraternity and the organizing committee. I take immense pleasure to propose a vote of thanks to our eminent speaker, Saurav Khandelwal, who spared the time from his busy schedule to grace this webinar with his extremely relevant presentation on entrepreneurship. I hope you guys enjoyed the session throughout. And as I have seen that the session was very interactive, and I guess all the doubts are cleared by now. So guys, get ready to take risks and use your ideas and innovation to benefit others as well as yourself in every way possible through gaining the knowledge as well as gaining experience from us. So I guess the link has been shared to you guys, and also Saurav sir has shared the link of his LinkedIn profile in case you want to talk to him, or if you want to interact with him after the session also, you can go forward and interact with him. So yeah, thank you, sir, for your eminent time right now, whatever you have dedicated to us. It was a great pleasure to have you with us today. Thank you. Looking forward.